Let's now straight away cut across to a press conference that's taking place at the BJP headquarters. Shehzad Poonawalla speaking. फाइंडिंग्स आए हैं, कौन करप्शन की डिग्री के साथ बैठा है और कौन अपने आप को कट्टर ईमानदारी का डिग्री और सर्टिफिकेट थमा रहा है, ये खुलकर सारी बातें सामने आ जाएगी। मैं आपको पहले सुनाना चाहता हूं कि कोर्ट ने जब फिर से एक बार मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 शराब घोटाले में उसे राहत देने से इनकार किया, उनकी बेल को रिजेक्ट किया, तो किस प्रकार से और किस आधार पे उस बेल को रिजेक्ट किया गया। क्योंकि कई बार इनके कई प्रवक्ता आते हैं आम आदमी पार्टी के और कहते हैं चुनौतीपूर्ण तरीके से कि क्या मनीष के यहां से झुंझुना भी मिला, मनीष के यहां से झुंझुना भी मिला। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि झुंझुना नहीं 100 करोड़ मिला, और भारतीय जनता पार्टी को नहीं, कोर्ट को मिला। पैरा 44 पढ़कर सुना रहा हूं, ये पैरा 44 पेज 29 और पेज 30। Thus it is clear from the above discussion, ये कोर्ट कह रहा है, that the applicant Manish Sisodia had played the most important and vital role in the above criminal conspiracy, and he had been deeply involved in the formulation as well as the implementation of the said policy to ensure achievement of objectives of the said conspiracy. The payment of advance kickbacks of rupees 90 to 100 crores was meant for him, इसको underline कीजिए, and other colleagues in the GNCTD, and rupees 20 to 30 crores out of the above are found to have been routed through the co-accused Vijay Nair, Abhishek Bonapalli and approver Dinesh Arora, and in turn certain provisions of the excise policy were permitted to be tweaked and manipulated by the applicant Manish Sisodia to protect and preserve the interests of the liquor lobby and to ensure repayment of the kickbacks to the said lobby. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मनीष सिसोदिया के घर में केवल झुंझुना नहीं है, मनीष सिसोदिया और कंपनी को 100 करोड़ की घूस मिली है। यह आज सत्यापित, स्थापित, स्पष्ट हो चुका है कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट की फाइंडिंग है। तो आज जो आकर चुनौतीपूर्ण तरीके से कहते हैं घर में मिला, गांव में मिला, लॉकर में मिला, मिला है। दूसरी बात, इसी श्रेणी में, इसी पंक्ति में आगे श्रृंखला में कोर्ट कहता है, Thus, as per the allegations made by the prosecution and the evidence collected in support thereof, so far the applicant Manish Sisodia can prima facie be held to be the architect of the said criminal conspiracy. कोर्ट कह रहा है कि प्रथम दृष्टया जो सबूत प्रस्तुत किए गए हैं उनकी समीक्षा करते हुए आज ये कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि इस भ्रष्टाचार नीति के मुख्य आर्किटेक्ट है, कर्ता धर्ता है, प्लानर है, एग्जीक्यूटर है। और ये कहते कट्टर ईमानदार है। ये करप्शन की डिग्री खुली है। और केवल ये नहीं, आगे और भी है। अब मैं आपको वो पैराग्राफ्स पढ़कर सुनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि ये स्कैम, ये घोटाला, ये भ्रष्टाचार केवल मनीष सिसोदिया तक नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के सर्वोच्च व्यक्तियों तक इसकी आंच जाती है। उसको भी सत्यापित करने का काम, स्थापित करने का काम दिल्ली के कोर्ट ने किया है। मैं पढ़कर सुना रहा हूं पैरा नंबर 31 जो पेज 21 पर। मुझे लगता है आप सभी के पास ये कोर्ट का ऑर्डर होगा, परंतु अगर नहीं है तो इस प्रेस वार्ता के बाद हम आपको उपलब्ध करा देंगे। पैरा 31, It has also emerged during the course of investigation that on 21/1/2021 itself, the applicant Manish Sisodia had called Shri Rahul Singh उस समय के एक्साइज कमिश्नर थे, और इनके साथ भी क्या क्या हुआ वो भी मैं आपको वर्णन करके बताऊंगा। कोर्ट के ऑर्डर में स्थापित किया गया है। He called Rahul Singh at his residence in the evening, and on being shown the file containing the comments, suggestions received from publics and stakeholders in the liquor trade, he handed over a printed draft note to Shri Rahul Singh and directed him to prepare a cabinet note exactly on the same lines, while informing Shri Rahul Singh that a GOM, group of ministers headed by him, was to be constituted via the cabinet meeting proposed to be held on 28th of January 2021, and the said GOM will give certain directions to the excise department in connection with restructuring of the excise policy, and Delhi will be divided into several zones, etc., etc.
मतलब कि पहले से ही यह तय था कि किस प्रकार से सरकार की हर एक इकाई, जीओएम और कैबिनेट क्या निर्णय लेने वाले हैं, यह कैसे पता था? इसका मतलब कि पहले ही सरकार के सर्वोच्च व्यक्ति से डिस्कशन करके इस पूरे स्कैम को एक प्रकार से एक्टिवेट किया गया। यह इसका प्रमाण है, क्योंकि जीओएम और कैबिनेट में जो फैसला होगा वो चीफ मिनिस्टर अर्थात इस स्कैम के किंग पिन के मान्यता के बिना हो ही नहीं सकता। और यह शहजाद पूनावाला बीजेपी नहीं कह रही है, यह कोर्ट के आदेश का पैरा 31 कह रहा है। उसमें आगे लिखते हैं, राहुल सिंह एक्सप्रेस्ड हिज रिजर्वेशंस। एक्साइज कमिश्नर कहते हैं उस समय के कि मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूं कि एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है, धवन कमेटी रिपोर्ट, और उसने क्या क्या कहा था मेरे कॉलीग्स ने इसी मंच से आपको बताया है। एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट को इतने बड़े पैमाने पे मॉडिफाई करने से मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। आई एम नॉट कंफर्टेबल टू मॉडिफाई इट ऑन अ लार्ज स्केल। But the applicant told him, Manish Sisodia told him that he need not worry as directions for such restructuring will come from the GOM. कैसे से पता था उनको कि GOM यही डायरेक्शंस देगा, उसको इसी प्रकार से बदलेगा इस पूरी की पूरी पॉलिसी को? और धवन कमेटी रिपोर्ट, एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट के एकदम उलट जाकर आप इस प्रकार की पॉलिसी करेंगे, GOM इसको जो है मुहर लगा देगा, कैबिनेट मुहर लगा देगा, यह कैसे उनको पता था एडवांस में? भविष्यवक्ता तो नहीं है मनीष सिसोदिया। इसका मतलब यह सेटिंग और प्लानिंग अरविंद केजरीवाल के लेवल पे ही हो रही थी, उन्हीं से क्लियर करके किया गया था। यह नेचुरल इंसिनुएशन नहीं, इंप्लीकेशन है जो कहा गया है उसका।